डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। હેલો એવરીવન, કેમ છો? મજામાં? Hope you all are doing well. Be positive, stay positive and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start a new topic today. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course. Our paper code number 102, which is Basics of Accounting, block number 3, unit number 2, which is Final Accounts. Here two type of final accounts are available: final accounts with adjustment and final account without adjustment. So in this unit we are going to learn final accounts without adjustments. So the learning objective of this unit: stages of the accounting cycle, various statement of account which comprise the final accounts of business entity, treatment of different items in a preparation of final accounts, preparation of trading account, preparation of profit and loss account and preparation of balance sheet. So ultimately what is the final account? Final account को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, then आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आफ्टर एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट which shows the financial condition of each and every company. Preparation of trading account, P&L account and balance sheet, and at the end of the unit we are going to learn limitations of balance sheet. The objective of accounting is to estimate the profit and loss of the business during the accounting period. This helps to ascertain the profit and loss of the company at a given time. This can also be done by financial statements, preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet. So let's have a look. Trading account. It is prepared to know the result of trading operation. The main objective of this account is to ascertain gross profit or gross loss during the business for accounting period. For example, usually a year it measures the overall performance of business during a particular period. In accounting terminology, gross profit means overall profit. It is the difference between the sale proceed for the particular period and the cost of a good sold actually sold. So in order to arrive at the gross profit, there is no deduction made, any sort of the deduction like a journal. So this is the format. Now format is given of trading account. ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को जानने के लिए उसका फॉर्मेट हमें जानना पड़ेगा कि डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, कौन सी एंट्री कैसे करनी है, फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें दी गई है. तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉपर मिलेगा. तो सबसे पहले आएगा डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है. देन आएगा परचेज. परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करना है. Then all type of direct expense आएंगे like wages, carriage inwards, freight inwards, carriage and etc. All kind of a direct expense. Then credit side आपको show करना है sales minus sales return. तो after sales return minus करने से आपको मिलेगा credit sale. उसके बाद आएगा closing stock and after end of the format आपको क्या मिलेगा? अगर डेबिट साइड डिफरेंस आएगा तो वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड अगर क्रेडिट साइड प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो उसे कहेंगे ग्रॉस लॉस. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अगेन आई रिपीट, एट द डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले. ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा. तो सबसे पहले डेबिट साइड हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक. देन परचेज, थ्रू आउट द ईयर हमने कितना परचेज किया.
फिर जितना परचेज किया होगा तो उसमें से कुछ कुछ परचेज जो है वो रिटर्न होगा, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, उसके बाद हमें मिलेगा नेट परचेज. Then all kind of direct expense like freight, carriage, custom, insurance, wages, package, वाटर एक्सपेंस एटसेट्रा, कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन बिल है, थ्रू आउट द ईयर कंपनी में भी काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, रेंट होता है, कोई भी प्रकार के बिल होते हैं, वेजेस होता है, पैकेजिंग होता है, कस्टम, तो ये सारे जो एक्सपेंस है वो हमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे ही यहाँ पे नोट डाउन करना है. उसके बाद क्रेडिट साइड आएगा, जैसे डेबिट साइड परचेज है माइनस परचेज रिटर्न है, वैसे ही सिमिलर क्रेडिट साइड आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो हमें मिलेगा नेट सेल. उसके बाद आएगा ऑल काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस मीन्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय द थेफ्ट, कुछ भी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस है तो यहाँ पे नोट डाउन करना है. फिर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नोट डाउन करना है, जो भी आफ्टर एंड ऑफ द ईयर के इतना सेल हुआ, तो सेल होने के बाद जो रिमेनिंग स्टॉक बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो उसे भी नोट डाउन करो. और एट द लास्ट अगर दोनों साइड आप टोटल करो, अगर डेबिट साइड जो डिफरेंस आएगा तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस लॉस. तो अल्टीमेटली फिर बोथ साइड हमें अकाउंट जो है वो क्लोज कर देना है. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit and loss account. With the above statement, the profit and loss accounts are the trader understand which why his business is moving and what percentage is the profit on the loss and incurred. For the trading account, first step is the profit and loss account. So first step is a trading account, second step is the profit and loss account. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे फॉर्मेट रहेगा, उसमें क्या नोट डाउन करना है. तो यहाँ पे आएगा ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आपको नोट डाउन करने हैं. जो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे कैरी फॉरवर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो अगर डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस आया कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड. तो यहाँ पे आफ्टर एंड ऑफ द फॉर्मेट आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा. अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो आएगा नेट प्रॉफिट, एंड अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो वो आएगा नेट लॉस. तो ये है पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस. जब हम प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इजीली वो अंडरस्टैंड होगा कि ये फॉर्मेट एक्चुअली क्या कहना चाहता है. बट बिफोर एग्जाम्पल हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि फॉर्मेट में क्या आएगा. तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट. सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. यहाँ पे सारे एक्सपेंस आएंगे, मतलब मुझे ये आपको बताना है कि कितने कितने प्रकार के एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है नोट डाउन होते हैं एट द डेबिट साइड. तो ये एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखा है ऑफिस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, बुक्स एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑडिट फी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ऑडिट फी, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस लाइटिंग, ऑल काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन. जो भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, कोई भी कंपनी है तो उसकी फिक्स एसेट तो होगी, फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो सारे फिक्स एसेट पे जितने परसेंटेज दिए हैं कि फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन काउंट करो, मशीनरी पे 10%, कोई भी दूसरी है लैंड एंड बिल्डिंग है तो उस पे 12%, तो जितने परसेंटेज दिए गए हैं उसके अनुसार आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा. तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे नोट डाउन होगा एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन, फिर आएगा अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. जो
हमारी जो पूरी साइकिल होती है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है या कंपनी कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसका जो पूरा साइकिल है कि सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल तैयार होगा। पहले तो पूरा सेटअप तैयार होगा, सेटअप मशीनरी, आपको जो भी प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से आपको मैन पावर की जरूरत है और मशीनरी की जरूरत है। मैन पावर आ गया, मशीनरी आ गया, फिक्स एसेट आ गया, ये सारा सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल रेडी करो, फिर जो गुड्स है वो फिनिश होगा, फिर पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग होने के बाद सेलिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा। तो ये सारी एक प्रोडक्शन चैनल है, तो उसे कोई भी कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये भी यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर ये है सेलिंग कमीशन, जो कोई कमीशन हमें पे किया है तो वो भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ब्रोकरेज, ट्रेड एक्सपेंस, ब्रोकरेज अगर है तो वो भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। सो ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट डाउन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्रेडिट साइड क्या आएगी, सारी इनडायरेक्ट इनकम, कोई भी इनकम है, आपको कमीशन मिला है, डिविडेंड मिला है, इंश्योरेंस क्लेम करने से कोई पैसा मिला है, या फिर कोई ड्यूटी आपको उसका जो डिस्काउंट मिला है, तो कोई भी प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम है वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको बतानी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट, एंड आफ्टर एंड ऑफ द टोटल आप दोनों साइड टोटल करोगे, अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड तो वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट, एंड अगर जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड तो वो होगा नेट लॉस। तो this is the proper format of trading account and profit and loss account. Now we are discussing about balance sheet. बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, द balance sheet details out the financial position of the company. It is not only the listed items control owned by the company but also includes the debts owned by the organization. A well evaluated balance sheet should have the value of company assets equal the total of value of equity of stakeholder and loss of the stability of the company. तो आफ्टर ऑल बैलेंस शीट क्या शो करती है, बैलेंस शीट के एक साइड आएगी पूरी लायबिलिटीज, कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो आएगी, और दूसरी साइड आएगी असेट्स। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है कि असेट साइड क्या आएगा, लायबिलिटी साइड क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टाइप की बैलेंस शीट है, मतलब जो कंपनी अकाउंट जो फॉलो करती है वो है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और जो अदर कंपनियां हैं वो टी फॉर्मेट को फॉलो करती है। टी फॉर्मेट में भी दो प्रकार की बैलेंस शीट यहाँ पे होती है, बैलेंस बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड बेस्ड ऑफ परमानेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ड ऑफ परमानेंस कैसे बैलेंस शीट बनानी है, तो उसका फॉर्मेट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा लायबिलिटीज एंड असेट्स। नाउ लायबिलिटीज साइड सबसे पहले आएगा कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करना है। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जो डिफरेंस से आपको मिला है नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करो बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, उसके बाद इंटरेस्ट अगर है तो वो ऐड होगा, फिर जो कोई भी ड्राइंग्स है तो उसे लेस करना है, नेट लॉस है तो उसे भी लेस करो, तो आपको नेट कैपिटल मिलेगी आफ्टर एंड ऑफ द प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन्स। फिर यहाँ पे है असेट्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिक्स असेट से, तो ऑल काइंड ऑफ फिक्स असेट, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, सभी जो फिक्स असेट है वो नोट डाउन करेंगे। फिर करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में आएगा यहाँ पे इन्वेंट्रीज, बिल्स पेएबल, सनड्राई डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑकर्ड इनकम्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी कैश है वो भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड।
सो नाउ यहाँ पे लिखा है एज पर द लिक्विडिटी। मैंने अभी बताया ना कि टी फॉर्मेट जो है, यहाँ पे दो फॉर्मेट है, एक वर्टिकल फॉर्मेट है और एक टी फॉर्मेट है। टी फॉर्मेट में भी दो टाइप है कि बैलेंस शीट एज पर द लिक्विडिटी एंड बैलेंस शीट एज पर द परमानेंस। तो अगर आप लिक्विडिटी के अनुसार बैलेंस शीट बना रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें लायबिलिटीज ऊपर आएगी और कैपिटल नीचे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट परमानेंस में हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और लायबिलिटी के अनुसार बना रहे हैं तो लायबिलिटी को पहले लो, सारी लायबिलिटीज नोट करो और लास्ट में आएगा कैपिटल। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि परमानेंस में फिक्स एसेट से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करंट एसेट से स्टार्ट करना है और फिक्स एसेट को नीचे आपको नोट डाउन करना है। तो ये है बेसिक डिफरेंस, आप देख सकते हो। ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। जो हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने हैं वो एग्जांपल्स में क्या आएगा कि आपको जो सम दिया गया होगा उसमें ट्रायल बैलेंस ही दिया होगा कि ट्रायल बैलेंस एट द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च। तो ट्रायल बैलेंस पे आपको फोकस करके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो सम दिया गया है उसमें ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड सारी इंफॉर्मेशन दी है और एडजस्टमेंट भी दिए होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मशीनरी इतनी है, बैड डेब्ट्स का परसेंटेज 2.5 है, फिर प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन काउंट करो, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन काउंट करो। सो जो पूरा एग्जाम्पल जो हमारा रहता है उसमें ट्रायल बैलेंस दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है सामने उसकी प्रॉपर अमाउंट है और सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो उसको ही फॉलो करके, उसे ही ऑब्जर्व करके हमें हमारा सॉल्यूशन मीन्स हमारा जो आंसर है वो प्रिपेयर करना है। उसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो प्रैक्टिकल कैसे करना है वो हम देखेंगे, बट ये थियोरिकल जो पार्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पे जानना है। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रेटेड फ्रॉम द लेजर अकाउंट एंड यहाँ पे लिखा है कि इट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस को जानने के लिए हमें पूरा रिवाइंड करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले कोई भी एंट्री होती है लाइक जनवरी मंथ है, 1 जनवरी से 30 जनवरी, 1 से 30 तारीख तक आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए कि पहली तारीख को बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ, 5 तारीख को आपने कोई टेलीफोन बिल भरा, 6 तारीख को सेल्स किया, तो ये सारे डे टू डे रिकॉर्ड आपके पास है। तो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलर मैनर में डेट वाइज जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करने के बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है कि मशीनरी अकाउंट है तो उसका प्रॉपर मशीनरी अकाउंट बनेगा, तो उसमें लेजर पोस्टिंग होगा। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये सारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गॉट इट? ओके, सो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे लिखा है कि इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रेटेड फ्रॉम द लेजर अकाउंट। मीन लेजर अकाउंट में से जो कैरी फॉरवर्ड होके ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो ये है। फिर इट कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। It contains the balance only those accounts which represent assets and liabilities. बैलेंस शीट शो करती है ओनली असेट्स एंड ओनली लायबिलिटीज। एंड ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? तो इट कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो जो हमारे अकाउंट्स के जो अलग अलग है कि रियल अकाउंट है उसको भी पोस्ट करके फाइनल आएगा वो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में से जाएगा बैलेंस शीट में। It is prepared before the preparation of trading and profit and loss account, and it is prepared after the preparation of trading and profit and loss account. So what is the basic difference? जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो
मीन्स के जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनने से पहले बनता है, और जो बैलेंस शीट है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनने के बाद एट द लास्ट हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट. जनरली इट डज नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, एंड सामने लिखा है इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच अपीयर्स ऑन द असेट्स साइड. सो जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, मतलब अकाउंट क्लोज किया नहीं होता, वो एक अजम्पशन होता है कि इतने इतने ट्रांजेक्शन आपके इस साल में हुए. बट जो बैलेंस शीट है वो एक्यूरेट है. क्लोजिंग स्टॉक उसमें पर्टिकुलर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, एंड दूसरी एंट्री होती है बैलेंस शीट में. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच अपीयर्स ऑन द असेट साइड. एंड द लास्ट इज expenses due but not paid and incomes due but not received do not appear in the trial balance. मीन्स अल्टीमेटली जो एडजस्टमेंट है कि पिछले साल का रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर एडवांस रेंट, फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं कि पिछले साल का कुछ बाकी रह गया है तो उसे ऐड करो, या फिर पेमेंट बाकी है तो पेमेंट करो, एंड इनकम रिसीव करने की बाकी है तो उसे ऐड करो. तो ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते, बल्कि जो बैलेंस शीट है वो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड, एंड द इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. मीन्स बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट की एंट्री होती है. अगर आपने पिछले साल का एक्सपेंस पे नहीं किया है तो वो लायबिलिटीज़ में हमें पे करना पड़ेगा, और कोई इनकम हुई है तो उसे असेट साइड आपको बतानी पड़ेगी. तो बैलेंस शीट इज द एक्यूरेट, बट ट्रायल बैलेंस इज अ वन काइंड ऑफ अजम्पशन के इतने साल में इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसका एक लमसम रिकॉर्ड जो होता है वो है ट्रायल बैलेंस. ये है क्लासिफिकेशन कि कितने प्रकार की लायबिलिटीज होती है. तो एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, एक करंट लायबिलिटीज होती है, और एक कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है. लिमिटेशंस, अल्टीमेटली कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट होती है, मतलब उसके अनुसार हम काम भी करते हैं, बट जो हम कहते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट एंड नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी बंदा होता है वो भी 100% परफेक्ट नहीं होता है. तो बैलेंस शीट की भी कुछ लिमिटेशंस है. तो वो लिमिटेशंस क्या है? Fixed assets are shown in the balance sheet as the historical cost less depreciation up to date. A conventional balance sheet cannot reflect the true value of these assets. Again, the intangible assets are shown in the balance sheet at the book value, which may not bear the relationship with the market value. मीन्स जो इंटेंजिबल असेट्स जो हम लिखते हैं कि गुडविल है, फिर कुछ कोई और प्रकार की जो है, तो वो एज पर द मार्केट वैल्यू नहीं होती है. एट द टाइम ऑफ जो कोई हुआ है गुडविल के, तो हम उसे नोट डाउन करते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है. समटाइम्स बैलेंस शीट कंटेन्स सम असेट्स which command no market value, such as a preliminary expense, debenture, discount, etc. The inclusion of these fictitious assets unduly inflates the total value of the assets. So these are some little limitations of balance sheet. Now some important terms जो आपको पता होने चाहिए कि फिक्स एसेट क्या है, गुडविल क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, जो हमने आगे डिस्कस किया वही है. फिक्स एसेट क्या है? तो असेट्स आर द बिजनेस ऑफ ओन बाइज फॉर द यूज विद इन द बिजनेस एंड विच स्टिल रिटेन्स द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर. They are major items like land, building, equipment, vehicles, but cannot include the smaller items like a tool. Fixed assets are subhead of a non-current assets. एज पर जो मैंने डिस्कस किया वही है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज फिक्स एसेट. तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स देने हैं. फॉर एन एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, एटसेट्रा. देन सेकंड इज अ गुडविल.
This is an extra value placed on a business if the owner of business decide it is a worth more than the value of its assets. Fixed asset is a tangible, intangible asset, subhead of a non-current assets. Third is a gross loss. The balance of the trading account, it has debited balance. मैंने जैसे बताया कि व्हाट इज ग्रॉस लॉस एंड व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर लो. अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो वो ग्रॉस लॉस होगा, और अगर डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में भी लिखा है कि द बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट अज्यूमिंग इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. नाउ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें आइडिया आएगा कि कैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. बट यहाँ पे विदाउट एडजस्टमेंट है, तो हम कोई एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा. डायरेक्ट एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उस पर से ही हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे लिखा है कि from the under noted trial balance a trader as on 31st December 2020 a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020 and balance sheet as on date. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 था एज ऑन 31st December 2020. राइट, सो दिस इज द डेट. पर्टिकुलर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होता है. बट यहाँ पे दिया है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट 31st December, तो हमें उस तरह से प्रिपेयर करना है. द ट्रायल बैलेंस जो है वो यहाँ पे लिखा है कि कैश इन हैंड 1200 है, परचेज 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 35,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 15,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, रेंट एंड टैक्सेस 10,000, वेजेस 16,000, सैलरीज 20,000. तो यहाँ पे टोटल हो गया 3,47,200. एंड नेक्स्ट जो नेक्स्ट साइड है वहाँ पे लिखा है कि कैपिटल 80,000 है, 4% बैंक लोन. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो हिडन एडजस्टमेंट है, वो नीचे अलग से नहीं बताया होगा कि ये एडजस्टमेंट है, बट ये हिडन एडजस्टमेंट है. 4% बैंक लोन मतलब जो 20,000 अमाउंट है उसका 4% करेंगे तो 800 आएगा. तो 800 की दो साइड एंट्री होगी, तो हम देखेंगे कैसे करना है. फिर बिल्स पेएबल 22,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, सेल्स 2 lakhs, बिल्स डेब्ट्स बैड डेब्ट रिजर्व 1200 दिया है. तो अगेन टोटल इज 3,47,200. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल सेशन. प्रैक्टिकल सेशंस मीन्स प्रैक्टिकली यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, सारी एंट्रीज दी है जो हम 1 by 1 रीड करेंगे. कैश है 1200, परचेज 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 35,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 15,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, रेंट एंड टैक्सेस 10,000, वेजेस 16,000, salaries 20,000. Total amount is 3,47,200. अगेन नेक्स्ट जो साइड है वहाँ पे लिखा है कैपिटल 80,000, 4% बैंक लोन विच इज 20,000. तो ये जो है हिडन एडजस्टमेंट है, 20,000 का 4% करेंगे तो 800 आएगा, इसकी दो साइड एंट्री होगी. नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 22,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, सेल्स 2 lakh, बैड डेब्ट रिजर्व 1200, एंड एट द एंड total is again similar than debit side 3,47,200. so now practically हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि 40,000 इज अ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 31st December 2020. सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेके हम पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट, particulars,
particulars and amount, particulars and amount, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे सामने आएगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, क्योंकि वहाँ पे वही डेट लिखी है कि एट द एंड ऑफ द 31 दिसंबर आप प्रिपेयर करो। लायबिलिटीज एंड असेट्स, तो ऐसे आपको प्रॉपरली अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। मैंने यहाँ पे रफली प्रिपेयर किया है, बट आपको प्रॉपरली हेडिंग देना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस में दिया है, सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आप कहाँ पे लिखोगे, परचेज कहाँ पे लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है, डेटर्स कहाँ पे लिखना है, वो हमने प्रैक्टिकली जो फॉर्मेट है उसमें देखा है। तो 1 बाय 1 ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में हम पोस्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें लिखना है, यहाँ पे दिया है 35,000, डेटर्स है 50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, फर्नीचर 15,000। ऐसे सारी जो अमाउंट दी है उसका हम कैलकुलेशन करके पूरा पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले कैश इन हैंड 12,000 एंड परचेज 1,20,000। सो कैश यहाँ पे आएगा, कैश इन हैंड 1200 कैश, परचेज टू परचेज 1,20,000। फिर आगे दिया है ओपनिंग स्टॉक 35,000। तो ओपनिंग स्टॉक अगेन हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक 35,000। सन्ड्री डेटर्स 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 15,000। डेटर्स यहाँ पे आएंगे 50,000। तो यहाँ पे उसमें हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं है, पहले हमें इनसाइड में लिखना है फिर आउटसाइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो सॉल्यूशन दिया है उसमें लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड दी है, फर्नीचर 15,000 लिखा है, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 50,000। फिर दूसरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी दो एंट्री करनी है, एक का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। और दूसरा आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो पहले से हम अगेन रिपीट करते हैं, कैश इन हैंड हमने लिख दिया, परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, डेटर्स लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिखा, फर्नीचर लिखा 15,000। फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल, रेंट एंड टैक्सेस। तो बिल्स रिसीवेबल हमें लिखना है यहाँ पे असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल कितनी अमाउंट दी है, बिल्स रिसीवेबल is 20,000। फर्नीचर 15,000, वो भी फिक्स असेट साइड लिखना है।
रेंट एंड टैक्सेस 10,000, वेजेस 16,000, सैलरीज 20,000। तो ये तीनों जो है वो P&L अकाउंट के एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। बिल्स रिसीवेबल हमने लिख दिया। नाउ फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000 वो हमने लिखा है रेंट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे रेंट आएगा, सैलरी आएगा, जो भी सारे एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी 10,000 एंड 20,000। तो जिस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें से 1 बाय 1 हमें तीनों अकाउंट पहले से ही प्रिपेयर करके 1 बाय 1 उसमें पोस्टिंग करना है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले कैश इन हैंड वो हमने लिख दिया, परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है वो हमने असेट साइड लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल को लिख दिया, रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरी ये सारी चीजें हमने लिख दी। फिर आएगा कैपिटल 18,000, तो वो लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे। कैपिटल 80,000, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल 80,000, उसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। जो भी P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट आएगा वो उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे वेजेस हमें लिखना था 16,000, तो वेजेस हमने लिख दिया। फिर है 4% बैंक लोन विच इज 20,000, तो बैंक लोन हमें यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस, तो बैंक लोन विच इज 20,000, bank loan which is 20,000. Now bills payable, sundry creditors, bills payable 22,000 and sundry creditors 24,000. Bills payable and creditors 20 and 24. तो ऐसे 1 बाय 1 हमें एक एक चीज क्लियर करते जाना है। सेल्स यहाँ पे दिया है 2 lakhs, बैड डेब्ट रिजर्व इज 1200, सेल्स इज 2 lakhs एंड बैड डेब्ट रिजर्व इज 1200। तो यहाँ पे जो बैड डेब्ट रिजर्व है उसे यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, एंड जो सेल्स है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेल्स परचेज डेबिट साइड आएगा, परचेज रिटर्न उसमें से माइनस होगा, तो हमें नेट परचेज मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, एंड सेल्स आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न अगर दिया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो तो आपको मिलेगा सेल्स, नेट सेल्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है और अकाउंट यहाँ पे दोनों साइड क्लोज करना है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो वो आएगा ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे डिफरेंस है 69,000 आप देख सकते हो, और दोनों साइड का टोटल है ग्रॉस प्रॉफिट 69,000 एंड दोनों साइड का टोटल 240। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट साइड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक अगर हम करेंगे तो 240 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में अब क्या बाकी है, रेंट आ गया, टैक्स आ गया, सैलरी आ गई एंड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बैड डेब्ट रिजर्व। जो अब क्या होगा, ये जो 69,000 है इसे कैरी फॉरवर्ड करना है P&L अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरी फॉरवर्ड है वो, तो 69,000 एंड 1200, एंड यहाँ पे आएगा टोटल, तो दोनों साइड का टोटल करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस होगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम डिफरेंस जो है 40,200 एंड दोनों साइड का टोटल अगर हम करें तो यहाँ पे
टोटल आ जाएगा आपका 70,200 एंड ये है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया कैपिटल, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो 40,200 है वो यहाँ पे लिखना है। तो टोटल 40,200 यहाँ पे टोटल करेंगे 1,24,000। तो टोटल आपको यहाँ पे दोनों साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका टोटल आ जाएगा 70,200। एंड ऐसे ही हम बैलेंस शीट का अगर टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 1,86,200। तो यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिए थे और कुछ नहीं है, खाली ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस पे से आपको तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हमने प्रॉपरली यहाँ पे देख लिया। आगे के यूनिट में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिर प्लांट एंड मशीनरी पे इतना परसेंटेज डेप्रिसिएशन काउंट करो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन काउंट करो, बैड डेप्ट रिजर्व 2.5% है काउंट करो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर का रिमेनिंग है उसे ऐड करो। तो ये सारे हिडन एडजस्टमेंट भी होंगे और प्रॉपर एडजस्टमेंट भी दिए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि प्रॉपर फाइनल अकाउंट आपको कैसे बनाना है विथ एडजस्टमेंट। ये जो था वो था विदाउट एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट यूनिट में और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे विथ एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। स्वाध्यायः परमम्